मैंने आपको दोनों केस भेज दिए थे फॉर द डिस्कशन। आप लोगों ने किसी ने देखा है वो जो मैंने मैसेज किया था आपको? कहाँ है आज वो सीआर, कहाँ है? दिखे नहीं अभी। आपने वो मैसेज देखा था ना क्लासेस में? देखा नहीं देखा? यस सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। पवन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। यस सर, मैसेज देखा था। चलिए ठीक है। तो अभी हम ये दूसरा केस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये इसको अभी 5 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। सॉरी, ये इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। यू गो थ्रू दिस केस।
should we start? Yes, sir. जो केस है इसमें सबसे पहली बात है यू हैव टू गो थ्रू दिस केस again. When we are discussing about any case, we should be very much clear about some of the facts. First thing, that the case should be thoroughly studied again and again. What is fact behind this? Because when we are going through the case number of times, again it is giving us a new view to understand it in a different manner. Some new facts are also coming. Some new facts are also coming when we are going through the any study or the cases. Because when you are going for the any question answer, then when you are studying that again, then you are able to understand in a better manner something which you could not understand earlier. You are studying, you are getting that things also again. Here when we are going to study a case, it is depending upon the opinion. Different individuals may be coming with a different opinion, and no individual here should be scared of about his or her ideas, because your idea may be helpful for others, may be helpful for taking the decision. It is depending upon the circumstances, it is depending upon the different type of activities. When we are going through the case, the views should be coming out. Brainstorming. What is brainstorming? When we are discussing about the issues by individual in a different way. Every individual has his or her own vision. Your vision may not be like me. Your vision may not be like some other person, and your interpretation may be according to your study, behavior aspect, your background, your education qualification, again your analytical capacity, whatever you are having with you, you have to take that in consideration. So here when we talk about the issues associated with the organization, we have to go through it thoroughly, and again in the group discussion the other person should be also valued. Valued means that if someone is interested to speak, then he should also be given opportunity, she should also be given opportunity. Because in the group behavior it is also essential that we are also adjusting other individuals also. So here today we will be discussing about the organizational behavior case. So here I will request any student who will be explaining this case. Here your objective is not associated with the questions. You have to only explain the case, what is the gist of the case, what is in the case. Either you are expanding it or you are squeezing. You have to give that case. You have to only interpret that case, interpretation of that case, or you have to study that case. After that, we will be going through the question one by one. Any student interested to speak? जी बोलिए. Yes, sir.
सर रीड करना है इसको। हाँ जी, बोलिए। सर रीड करना है इसको। रीड करना है या अपने शब्दों में बताना है, ये आप बताएं। मतलब अपने शब्दों में बताना है कि ये क्या चीज है इसके अंदर। सर ऑर्गेनाइजल बिहेवियर का केस है, इसमें बोल रहा है कि अरविंद ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है IIM अहमदाबाद से, एंड उसने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है मुरादाबाद में। एंड उसके जो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, उसमें 27 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। देन ड्यूरिंग द वीक ऑन दिस job, his father called him and said, Arvind, I have observed you working with the workers for the past 2 days. I want to advise you something I know. कि अरविंद जो है अपने वर्कर्स जो भी जिनके साथ वो काम कर रहा है 2 दिन से, उनको वो जो ह्यूमन रिलेशन का बारे में उनको बता रहा है, मैनेज कर रहा है उन चीज़ों को, उन चीज़ों के साथ। देन जो चीज़ें उसको कॉलेजेस में उसने सीखी हैं अपने वर्किंग स्किल्स की वजह से, देन हिज फादर टोल्ड हिम कि जो भी वो चीज़ें बोल रहा है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेंगी। I was also taught the of the studies when I was in business school. I too was very excited by them, but in reality there is no more to managing people. Arvind is very confused. He wonders what to do. अच्छा, ये इसमें इन्होंने दैट ही हैज टॉक्ड अबाउट द हॉथॉर्न स्टडीज। कोई बता सकता है कि हॉथॉर्न स्टडीज क्या थी, या हॉथॉर्न स्टडीज के बारे में आपको कुछ पता है? सर वर्कर्स को ऑब्जर्वेशन में जो काम करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इल्यूमिनेशन वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें सर, बोलिए। कि सर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद भी वर्कर्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। हाँ जी, सर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद भी सर वर्कर्स पे लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ा था, उनके वर्क पे भी कोई फर्क नहीं था। सर सोशल साइकोलॉजी और की कोई? चीज़ें अच्छा, और कोई? और भी कोई बोलेगा? चलिए, अच्छा, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, और कोई दोबारा इसको एक्सप्लेन करेगा? अर्पित ने कर दिया, कोई और एक बार एक्सप्लेन करेगा? सर जहाँ तक कि मुझे समझ में आता है इसमें ये चीज़ बताई गई ये कि एक जो भी मतलब इंडस्ट्री या फिर जो भी बिजनेस होता है वो पुरानी स्किल्स या पुराने तरीके से मतलब चलाया जा रहा होता है, और कोई नया इंसान किसी अच्छी हायर स्टडी ले करके अगर किसी बिजनेस को रन करना चाहता है तो उसमें क्या वो चेंजमेंट करे जिससे कि उसकी जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो डेवलप हो सके, उनकी स्किल्स डेवलप हो सके और नए नए इनोवेशन हो सके, शायद समथिंग। बिल्कुल ठीक बात है, बट अभी अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि भाई इस केस को आपको एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज एसोसिएटेड विद दिस केस। अभी फिलहाल हम इसको एक्सप्लेन करें, फिर हम आगे बात करेंगे जो आप कह रहे हैं। तो जहाँ तक इस केस को पढ़ने में ये समझ में आ रहा है कि जो भी है उसके फादर को मतलब इस बिजनेस में ज्वाइन होने को बोल रहे हैं, शायद मे बी राइट या फिर नहीं हो सकता है। जी, नहीं वो बात आपकी कहना ठीक है, ये बट अगेन वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस क्या केस क्या है। पहले आप ये बात बताइए मुझे, सीधे सिंपल सी बात। सर मैं करूँ एक्सप्लेन? केस बताइए आप। अर्पित ने बताया और कोई और बताइए। अब ये जैसे अभी इन्होंने बताया था, प्रीति ने बताया, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें ताकि मतलब जो ऑडियंस है उसको भी समझ में आना चाहिए ना। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है।
सर अरविंद अभी अभी आईआईएम से ग्रेजुएट करके आया है और उसने अहमदाबाद में अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है, मुरादाबाद में, सॉरी, आईआईएम अहमदाबाद से आया है, मुरादाबाद में उसने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है, जहाँ पर सेमी स्किल्ड मतलब 20 वर्कर्स उसके बिजनेस में काम करते हैं। एंड जब उसके फादर ने उसको ऑब्जर्व किया कि वो वर्कर्स के साथ मतलब काम कर रहा है, तो उन्होंने उसको समझाया कि जो तुम पढ़ के आए हो एक्चुअली में वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। जब मैं भी पढ़ के आया था हॉर्न स्टडी, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था कि मैं भी उसको यहाँ पर यूज़ करूँगा, पर वो एक्चुअली में यहाँ वर्क नहीं कर पा रहा है। कुछ खास है? अभी तो भी आधा घंटा लगे। हाँ। तो सर अरविंद अभी बहुत नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज है और वो सोच रहा है कि क्या करना चाहिए। हाँ, मतलब यहाँ ये क्वेश्चन ये उठता है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी स्टडी दैट यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट दोज फैक्ट्स, कि भाई आपको वो फैक्ट्स क्या थे, दैट ही वाज ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद, अगेन एंटर्ड इन दैट अगेन क्या आईआईएम अहमदाबाद की जो स्टडीज हैं दैट इज एसोसिएटेड विद द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आल्सो। Here question was associated with the small scale industry. He went to the Muradabad, and in the Muradabad that the type the skill the individuals are having. Again, one thing is there, when any individual is associated with the business, or that you are not getting the substitute also. Sometimes it happens with the organization also. तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन ये है, if you were Arvind, how would you behave in the situation? अगर आप अरविंद होते तो उस सिचुएशन में how you would have behaved in this you have to explain that. अब पहला क्वेश्चन ये है, तो तब हम आगे इस पे डिस्कस करें। तो आप बताइए, if you would have अरविंद। सर अगर मैं अरविंद होता तो सर मैं वही टेक्निक्स यूज़ करता जो कि उसके फादर यूज़ करते आ रहे हैं अब तक बिजनेस को चलाने के लिए। क्या नाम है आपका? कृष्ण? यस सर। कृष्ण, हाँ। यस जैसे कृष्ण ने कहा कि भाई वो मैं वही मॉडल अडॉप्ट करता जो मेरे फादर ने अडॉप्ट किया, ठीक। और कोई? सर अगर वो भी वही टेक्निक अडॉप्ट करता जो उसके फादर ने किया है, तो फिर कोई चेंजमेंट ही ना होता। उसको अलग से कोई टेक्निक लेनी चाहिए ना, जिससे कुछ चेंज हो, क्योंकि उसके फादर की टेक्निक फेल हो गई तो उसकी भी आगे चल के फेल ही हो जाएगी, चांसेस कम रहेंगे सक्सेस होने के। सर अगर टेक्निक फेल हुई होती तो सर बिजनेस अच्छे से परफॉर्म ही ना करता, वो ज्वाइन ही ना कर पाता। अगर टेक्निक चेंज हो जाएगी तो बिजनेस और भी अच्छे से जा सकता है। तो अगर टेक्निक चेंज हो गई तो उसके फादर फिर उसको क्यों मना कर रहे हैं कि तुम्हारी वो टेक्निक वर्क नहीं करी जो तुम एक्चुअली में स्टडी करके आए हो? नहीं, देखिए वो सर उसे अपने फादर की टेक्निक के साथ साथ और भी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, ताकि उसका जो बिजनेस है डेवलप करना भी मतलब एक्सेप्ट और नए जो टेक्निक। ये सर न्यू जनरेशन की अपनी एक नई टेक्निक होती है सर, क्योंकि सर एक टाइम के बाद सारी चीजें आउटडेटेड होती हैं, पिछला वाला भी और आगे की नई चीजें भी। ठीक है, मतलब अंकिता ने कहा कि भाई आउटडेटेड चीजें को हम चेंज करना चाहते हैं, ही ना? एक्चुअली आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं आई थी, इसलिए। हाँ सर मैं बोल रही और कोई? सर अगर किसी भी बिजनेस को अगर ग्रोथ देनी है, देन हमको सबसे पहले तो हमें जो ओल्ड स्ट्रेटेजी थी या काम करने का तरीका उनको समझना चाहिए। यहाँ हम ये यहाँ एक बात कर रहे हैं। पहली बात हम जो क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें, तो जो हमारे जो डिस्कशन है दैट शुड बी एसोसिएटेड विद द क्वेश्चन। हियर वी आर एसोसिएटेड विद द क्वेश्चन, इफ यू वर अरविंद हाउ वुड यू बिहेव इन दिस सिचुएशन। आप इस सिचुएशन में होते तो आप बिहेव कैसे करते? आप अपनी बात ना करें, मैं अरविंद होता तो मैं ऐसी सिचुएशन में बिहेव कैसे करता? सर अगर अरविंद होते तो उस सिचुएशन में एंड शॉकिंग सा मोमेंट होता कि जो हमको कॉलेजेस में पढ़ाया गया है, जो हम स्टडी करके आए हैं, अगर वो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, देन व्हाट कैन आई डू। सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरा खुद से यही होता कि अगर हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं
और वो चीज़ें यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और उससे चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। देन फिर मैं ऑब्जर्व करता कि किस तरीके से चीज़ों को करना है और स्ट्रेटेजी एक प्लान करता। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अब आपने क्या क्या कहा, वही तो हम उसका तो आंसर देना है आपको। व्हाट वुड आई हैव टू, व्हाट वुड आई हैव टू डू, अगेन इसका आंसर बनाना है आपको भाई। आप लोग उसका आंसर बनाइए, क्या भाई अगर मैं अरविंद होता तो मैं क्या वर्क करता। अभी आप ये इस बात पे बात कर रहे हैं जैसे चेंज होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हाँ बोलिए। सर मैं अरविंद होती तो मैं पहले उसको ऑब्जर्वेशन बिजनेस का, फिर मैं देखती मतलब क्या चीज़ की जरूरत है और कैसे परफॉर्म करना है, फिर मैं इस तरीके से बनाती और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू करती। ठीक बात है। आप क्या करते दोबारा, एक्चुअली आपकी माइक में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे क्लियर नहीं समझ में आता। मेरी आवाज आ रही है ना तो क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ आपके हाँ एक बार दोबारा बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं बोल रही कि पहले मैं बिजनेस को ऑब्जर्व करती, उसके बाद मैं देखती कि किस चीज़ों की कहाँ जरूरत है और जो मैं अपने स्टडी से रिलेट करती, और जो नई नई चीज़ों का मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ें जरूरत है, उसे क्या करती वहाँ इंक्लूड करती और मैं सारी चीज़ों को साथ में लेके चलती, फिर वैसे वक्त करती। सर गांव में नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, इस वजह से आप क्लियर नहीं जा रही। कोई नहीं, आप बोल रहे हो वही बहुत बड़ी बात है। कुछ तो लोग बोल नहीं रहे, आप बोल रहे हो वो अपने आप में बड़ी बात है। कुछ तो लोग बोलने नहीं चाह रहे हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर आप अरविंद होते तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। तो अब आप अरविंद हैं, तो आपने दोनों मॉडल का अंतर बात करते ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट मॉडल एंड द सेकंड मॉडल, and what is the existing model, what I have studied over there, what is in the present in my company is there, what is associated with the other company। भाई आप अपने आपका SWOT एनालिसिस की बात नहीं कर रहे, आप SWOT एनालिसिस भी तो करिए कि SWOT एनालिसिस करिए कि भाई जो मॉडल है आप अगर आपने वहां पढ़ा है उसमें हम कौन सा मॉडल हम ले सकते हैं, हम कौन सा मॉडल आप ले सकते हैं। यू हैव टू टेक दैट इन कंसीडरेशन। आप मॉडल बताइए। अब तो सब हम ये कह रहे हैं ना। अब आप एक बार बताइए तो सही कि भाई अगर आप अरविंद होते तो क्या करते। सर स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग चलते। अर्पित बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, प्रीति बोल रही है, अंकिता बोल रही हैं, और लोग भी हैं क्लास में। ऐसे है नहीं है कि सब लोग हैं, सब लोग अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है। जी बोलिए। सर स्टार्टिंग में अपने फादर के रूल्स के अकॉर्डिंग चलते, आफ्टर देन सब में इम्प्लीमेंट करते जाते किसी भी बिजनेस में, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। जी सर मैं यहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को अप्लाई करता। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को अप्लाई करना है, क्या बात। अच्छा ये बताओ अर्पित, व्हाट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप? यस सर। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है तो होती क्या है? सर जिसमें इंडिविजुअल कंट्रोल्स होते हैं एंड डिसीजन लेने की जो भी होता है वो हम ग्रुप मेंबर से इनपुट लेते हैं, देन हमारा डिसीजन खुद का होता है, देन हम उनसे ग्रुप मेंबर से बातचीत करते हैं ऑटोक्रेटिक। ठीक है। अब कोई आदमी सपोर्ट करेगा इनकी बात को, अर्पित की बात को, कि वी शुड अप्लाई ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हियर? सर
सबसे पहले तो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन मैनेजमेंट को समझना चाहिए सर, क्योंकि जब तक हम मैनेजमेंट नहीं समझेंगे तो सर बिजनेस को चलाएंगे कैसे। बिल्कुल सही बात। Then you have to understand the management. What is the management and good. हाँ, क्या मतलब उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर जैसे कि हम अपने वर्कर से पहले सर बात करेंगे, सर देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं, और फिर सर जैसे कि मतलब इस केस स्टडी में ये है कि अरविंद के पापा उससे बोलते हैं, तो वो पहले अपने पापा से पूछेगा कि आखिर वो मतलब कहना क्या चाहते हैं उससे, कि वो सीखेगा उनसे, बातों को उनकी समझेगा, फिर वर्कर से बात करेगा, फिर उससे सर वो कनेक्ट करके देखेगा कि प्रॉब्लम क्या है उसके काम करने के तरीके में। ठीक बात जी। सर पूछने से अच्छा अगर वो अपने फादर के जैसे ही वर्क करेगा तो उसको प्रॉब्लम इजीली फाइंड आउट हो जाएगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब वो अपने फादर से क्या कहें कृष्ण? सर वो अपने फादर के जैसे क्या ही कहा? फिलहाल काम कर सकता है, और जब वो सर काम लेकिन करेगा तो उसे खुद ही प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि क्या सर प्रॉब्लम लेकिन है। बात ये भी तो है सर, काम करने के लिए भी फादर की तरह उसको फादर के स्ट्रेटेजी को समझना तो पड़ेगा, और समझने के लिए सर इंटरेक्ट करना तो जरूरी है। तो जब वर्क करेगा तो ही तो स्ट्रेटेजी को समझेगा, कि वो उनसे पूछेगा कि क्या स्ट्रेटेजी है, उनके साथ काम करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, तब वो स्ट्रेटेजी की समझ पाएगा। यस सर, पर सर बिना इंटरेक्शन वर्क के सबसे स्ट्रेटेजी होना कैसे चाहिए, टॉप समझेगा। लेवल ताकि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो हर जगह से पता चले। यस सर। सर सोशल साइकोलॉजी फैक्टर एंड ग्रुप फॉर्मिंग को लेकर अगर आप बात करेंगे देन हम एक बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। कौन? अर्पित आप बोल रहे हैं? यस भाई सर। अर्पित ऐसा ना हो कि हेलो। हो जाते हैं, कभी आप सोशल फैक्टर को पकड़ लेते हैं, कभी आप कॉलेज एजुकेशन को पकड़ते हैं, तो आप थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखें कि वट एवर यू आर सेइंग देयर शुड बी कोरिलेशन होना चाहिए, वो बेटर रहता है। ठीक है, तो मतलब सोशल फैक्टर, तो अगेन कैन यू एक्सप्लेन द सोशल फैक्टर हियर? क्या यहाँ पे क्या बात करना चाहते हैं? सर सोशल फैक्टर में हम जो हमने काम किया है अभी तक, हमने जिस तरीके से जो भी अपने बिजनेस में अचीवमेंट्स लिए हैं, जिस तरीके से हमने चीज़ें देखी हैं, ठीक है, बेसिकली जो हम लोग फ्रिक्वेंटली डिस्कस करेंगे, मतलब चीज़ों को कैसे हुई हैं हम उन पे गौर करेंगे, क्या चीज़ें थे, सेंटिमेंट्स थे, एम्प्लॉय का क्या उसमें रोल था, ठीक है। देन क्योंकि सर जो भी हम बिजनेस होता है कि अगर हम एक नॉर्मल बात में कहेंगे तो हम पिताजी के कहने से या किसी के कहने से हम नहीं उसको आगे ले जा सकते हैं, हम तो सीधा वर्कर्स के फॉर्मेशन के ऊपर हम कर पाएंगे ना सर, कि वर्कर्स किस तरीके से काम करना चाहते हैं और किस तरीके से एक अपना बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने हाथोन एक्सपेरिमेंट की बात की, और जो हाथोन एक्सपेरिमेंट है वो कोई एक दिन में नहीं हुआ, उसको 1925-27 से 32 तक शायद हुआ, मतलब 5-6 साल तो उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने में लगे। ये नहीं है कि एक ही दिन में वो कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया। तो उस एक्सपेरिमेंट को वैलिडेट करने के लिए भी टाइम लगा। और यहाँ इन्होंने क्या किया, अरविंद ने कहा कि एक तरफ तो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ ये कर रहे हैं कि अच्छा तुरंत ये सब चीज हो जाए। तो आपको मतलब खाना बनाना है या स्वादिष्ट खाना बनाना है, खाना जब वो होटल पे जाते हैं तो या तो वो चूल्हे पे बनता है या ओवन में बनता है या फिर वो मैकेनाइज सिस्टम से बनता है। जिस भी सिस्टम से बनता है उसका फ्लेवर उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई जो हम बात कर रहे हैं या जो हम इसमें आइडिया दे रहे हैं, तो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट आइडिया। एज अभी किसी ने बोला था कि भाई सुरभि ने बोला था कि भाई हाँ, कि भाई अंडरस्टैंड को, मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको थोड़ा टाइम भी तो देना पड़ेगा।
अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं. व्हाट फेजेस ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक अरविंद फादर हैज गॉन थ्रू इन हिज फैमिली बिजनेस? हाउ वुड अरविंद एक्सप्लेन टू हिज फादर द न्यू पर्सपेक्टिव दैट इज नीडेड? अब जो शुरू में आप लोग बात कर रहे थे कि भाई उसको अपने पुराने तरीके से चलना चाहिए तो बिजनेस उसका अच्छी तरह चल जाएगा. जिसने कहा कि अच्छा नहीं, इसको अगर टेक्नोलॉजी हम चेंज नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चल पाएगा. अब वो इस क्वेश्चन में आपके वो आंसर आने चाहिए. अब आप डिस्कस करें. What phases of management do you think Arvind father has gone through in his family business? How would Arvind explain to his father the new perspective that is needed? अब आप बताइए. सर सबसे पहला फेज तो सर वही है जो अरविंद के फादर ने एक्सप्लेन किया कि जब वो कॉलेज से पढ़ के आए थे तो उन्होंने हॉथॉर्न स्टडीज़ अप्लाई, मतलब हॉथॉर्न स्टडीज़ पढ़ के जो आए थे अप्लाई करी थी, पर वो इतनी वर्क नहीं करी. सबसे पहला फेज तो यही था सर. एंड सर और देखिए, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आपकी बात जो बात कर रहे थे. देखिए मैं पढ़ रहा हूँ उसको. I was also taught the Hawthorne studies when I was in business school. I too was very excited by them. But in reality, there is more to managing people than just being nice to them. Arvind is very confused and he wonders what to do. तो आप बात कर रहे हैं कि हाँ, अब उस कॉन्टेक्स्ट में बताइए, बोलिए कृष्ण. सर फर्स्ट फेज ये था कि जब अरविंद के साथ में कि मैं हॉस्पिटल पढ़ के आया था तो यहाँ पे ये की तरह की जरूरत पड़ी. उन्होंने जो उसको एक्सप्लेन करा. जी सर अरविंद ने भी उन्हें सर जैसे सर ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि वर्कर के साथ नाइस रह के भी, मतलब अच्छे से बात करके या अच्छे से इंटरेक्ट करके उन्हें अच्छा फील करा के हम काम करा सकते हैं सर. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा करने के चक्कर में वो वर्कर काम करना ही कम कर देते हैं या उन चीजों को बहुत लाइटली लेने लगते हैं. तो सर काम कराने के लिए भी तो इतना नाइस होना भी तो जरूरी नहीं है वर्कर के साथ. सर हर लेवल में एक सर होना चाहिए कि वो आपस में बात करें, लेकिन अपने लेवल को भी समझे कि अगर हम उनसे ऊपर हैं तो हमें उनसे काम कराने के लिए क्या करना चाहिए. अब यहाँ ये सबसे बड़ी नाइसली बात में ये और है कंफर्ट जोन में सर डिफरेंस होता है कि अगर हम किसी को कंफर्ट जोन में रख के अगर काम करा रहे हैं देन उसमें थोड़ा हमको डिसएडवांटेजेस मिल सकते हैं कि कंफर्ट जोन में है तो वो आदमी काम नहीं करेगा. बट नाइसली होने में कोई प्रॉब्लम नहीं सर. अगर आप किसी के साथ नाइसली हैं तो देन आप उससे एक प्योरिटी लेके एक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, कम वेजेस में किस तरीके से काम करा सकते हैं, यही चीज़ें बोली गई हैं होटल में. देखिए, इसमें एक बात आपने अभी तक डिस्कस नहीं की. और बोलिए अंकिता, बोलिए आप कुछ आवाज. अरविंद की हाँ बोलिए. देखो भाई, अभी यही बात पूरी चल रही है. एक हाँ, अरविंद के फादर. सर जब अरविंद फादर स्टडी करके आए होंगे वो बहुत समय पहले करके आए होंगे और अरविंद अभी वहाँ से स्टडी करके आया है और काफ़ी सारी सिचुएशन एंड चीज़ें चेंज हुई हैं इन समय में, और जो उसने पढ़ा होगा वो उसके बाद का पढ़ा होगा तो वो अप्लाई कर सकता है वहाँ पर. नहीं, एक बात और है ना, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, यहाँ पे एक बात देखिए, आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी. भाई वो अरविंद IIM से आए और मुरादाबाद में आ गए. द बिजनेस एम्प्लॉयज 20 सेमी स्किल्ड वर्कर. दो चीजें हमें देखने वाली बात है कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर. और जो हमने जो पहले स्टडी की थी, जो सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं तो
और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप के हैं, अपैथेटिक हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, किस टाइप के ये वर्कर होते हैं, ठीक है, और किस टाइप की हमारी ऑर्गेनाइजेशन। स्किल्ड वर्कर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ हिज जॉब, आप पूरा पढ़िए, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ हिज जॉब हिज फादर कॉल्ड हिम again and said, Arvind, I have observed you working with the workers for past 2 days. I want to advise you something. I know you have been taught human relations stuff at the institute, but it just does not work here. अब इनके फादर ने कहा कि भाई आप ठीक है, और एक बात तो मैंने आपको पहले कही कि भाई जो हाथों स्टडी है वो एक दिन में नहीं हुई। और अरविंद, अगर आप एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हुए इतना जल्दी आप रिएक्ट करेंगे, जैसे अभी इन्होंने बात की थी, क्या कहते हैं, सुरभि ने भी, प्रीति ने ये, और शायद अर्पित ने भी बात की थी, और कृष्ण ने भी बोला था इस बात को कि भाई अगर हम एक ही दिन में रिएक्ट करेंगे तो एक ही जगह हम रिएक्ट करेंगे, तो क्या ये टाइम एक शॉर्ट स्पेन नहीं था? शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में आप इतना जल्दी आप रिएक्ट कर रहे हैं, that you require to adjust yourself in that situation। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी वर्क के लिए समय देना चाहिए, नहीं? यस सर, देना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर पूरे इसको स्टडी करेंगे तो पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि नहीं भाई, अरविंद इतना जल्दी में है, अरविंद जल्दी में है, तो क्या उन्होंने हाथों स्टडी का, भाई आप पढ़ के आगे, तो हाथों स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आपने वर्कर को उसके ऑब्जर्वेशन में लगा दिया और ऑब्जर्वेशन के बाद उनकी लाइट कम कर दी और ज्यादा कर दी, बट अगेन दैट दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद द बिहेवियरल साइंस अप्रोच। बिहेवियरल साइंस अप्रोच में भी वो लोग उसमें ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में भी वर्क करना है। अच्छा, हाउ विल द स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प अरविंद टू सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस? अब ये बताइए, अब जो ओबी का बुक हम पढ़ते रहते हैं, ये ओबी लगता है बोरिंग सब्जेक्ट है, या एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और ये, और इथोस एंड वैल्यूज आल्सो। People and the individual who are in the class, sometimes they are thinking that these subjects are not that fruitful initial level, but whenever they are going in the organization, they feel that this subject is helping them to take the decision and analyze the situation in a different perspective। जब आप फील्ड में जाते हैं तब आपको डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये किस टाइप का वर्कर है, किस टाइप का इंडिविजुअल है, देन किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का वर्क डिजाइन है, किस टाइप का वर्क रीडिजाइनिंग हो रही है, तो दैट यू हैव टू टेक दैट इन कंसिडरेशन। अब इसमें आप बताइए, हाउ विल द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प अरविंद? अरविंद बताइए। और ये जो दूसरे लोग हैं, ये ना देखें कि हेल्प अरविंद तो है, आप भी हेल्प अरविंद की कर सकते हैं। ये 5-6 लोग ही हेल्प नहीं करेंगे, अर्पित, कृष्ण, प्रीति, अंकिता, विश्वास, सुरभि, यही हेल्प नहीं करेंगे, और लोग भी हैं हेल्प करने के लिए, वो भी आगे आए, अरविंद की हेल्प करें। जी बताइए। सर ऑर्गेनाइजल बिहेवियर में सर हम जो हमारा वर्क करेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले सर हम फाइंडिंग राइट पीपल जो चीज़ों को सही तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि उसमें आपने बताया भी, हम लोग एक्सप्लेन किया कि सेमी वर्कर्स हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पे ये काम करेंगे कि हम देखेंगे कि जब इतने ज़्यादा वर्कर्स रखने से अच्छा हम कुछ स्किल्ड वर्कर्स रखें, जिसकी वजह से काम अच्छा हो सके एंड चीज़ों में ग्रोथ बढ़े
और हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें कि अगर हम सेमी स्किल्ड वर्कर्स अगर हम 20 रख लें, 30 रख लें, और वही अगर हम स्किल्ड वर्कर रख कर 10 वर्कर्स में काम कर सकते हैं, तो देन उसको कैसे मैनेज करेंगे एक सही क्या कहते हैं आइडिया के साथ। क्यों सही कह रहे हैं ये अर्पित सही कह रहे हैं क्या? और लोग बताएं। सर हमें स्किल्ड वर्कर्स रखने की बजाय इन्हीं सेमी स्किल्ड वर्कर्स को फुल स्किल्ड कर देना चाहिए, बना लेना चाहिए, इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, एंड फिर उसको समय समय पे डायरेक्ट करते रहना चाहिए ताकि वो वर्क अच्छे से करते रहें। अर्पित फिर इसमें एक बात ये निकल के आई, जैसे ये कृष्ण कह रहे हैं कि भाई अगर आदमी को, अगर आपने 23 आदमी हैं, 23 आदमियों को आपने हटा देंगे, सेमी स्किल्ड का को हटा देंगे, तो वो ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच तो फिर वहां पे फिर खत्म हो जाएगी। नहीं सर, सभी को नहीं हटाना है सर, तो सभी को हटाना नहीं है कि हम सभी को हटा कर काम कर रहे हैं, बट हमें उनमें से कुछ लोगों को रखना है जो पुराने लोग हैं, जो काम को एक सीरियसली तौर पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम उनका, क्योंकि सर पहले जैसा सर आपने बताया लेकिन कि आपने बताया सर ये भी तो हो जाएगा कि नहीं बन लेकिन सर यहाँ पे सर जो अर्पित कह रहे हैं कि जैसे सर कि जो पुराने वर्कर को हम रख सकते हैं, नए वर्कर को हम निकाल सकते हैं, बट सर ऐसा सर ये भी हो सकता है ना कि सर नए वर्कर जो आएंगे तो नया थॉट्स लेके आएंगे कंपनी में, और जो पुराने वाले हैं वो तो पुराने, उनको तो कंपनी के बारे में पता है, लेकिन जो नए आएंगे तो मार्केट में क्या चल रहा है सर उस थॉट को लेके आएंगे कंपनी में, और उसको थोड़ा अचीव करने के लिए सोचेंगे, थोड़ा डेवलप करने के लिए सोचेंगे थोड़ा नए वाले। हमको एक अच्छी टीम डेवलप करनी है कि जिसमें एक मतलब हम लोगों को कैसे एक लीडरशिप, मतलब उनको कैसे हम लीड कर सकते, बिल्कुल सर लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी तो आएगी कि सर हम नए अगर वर्कर लाते हैं तो हमको उनको पूरे तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टार्टिंग से सिखाना पड़ेगा, और जो सेमी स्किल है उनको पहले से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, तो हम उनको अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और समझा के उनको स्किल बना सकते हैं। जब कोई भी वहाँ पर ये वाले बोलिए ना स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स पुराने वर्कर्स की भी स्किल्ड जो सर वहाँ पे होंगे, राइट वो जॉब ऐसा के लिए थोड़ा राइट कि स्किल्ड पर्सन को रखना पड़ेगा। मतलब जो जॉब के लिए सुटेबल हो उनको, मतलब वैसे जिनको आता है जो काम करना, उनको उसी जॉब पे मतलब रखना पड़ेगा। नए वर्कर और पुराने वर्कर दोनों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जब ये इन्होंने तो सर फिर अंकिता ने कॉस्ट एक पे बात भी की, तो इफेक्ट पड़ेगा सर, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, व्हाट इज दैट? राइट जॉब फॉर राइट पर्सन, वो क्या चीज है? सर उसमें जो सर इसका मतलब ये है कि सर जो जैसे कि हाँ स्किल्ड को वही जॉब देना। यस सर, यस। एलिजिबिलिटी अनुसार जो इंसान सर जो इस चीज में स्किल्ड जो है उसको अच्छा वही काम कर जॉब सकता देना। है, उसको किस जगह पे जहाँ पे वो बेटर कर सकता है, उसको हम वो कर रहे हैं। अगर सपोज दैट कोई नहीं अगर तो अच्छा बना ऐसा सका नहीं, है, अगर जैसे उससे हम सब्जी कटवा रहे हैं तो अलग चीज हो जाएगी ना सर। सर जो अभी कृष्ण हरि पांडे का है कि जो जिस चीज के लिए सुटेबल है उनको वहां पे जॉब करना चाहिए, बट सर दूसरे को भी तो सर चांस देना चाहिए सर इसमें जो ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मैं दूसरे को चांस दूंगा ना कि अपना लॉस करने के लिए। उसके लिए हम असिस्टेंट के तौर पे उनको रख देंगे ना, कि आप उनको देखिए, उन साथ चीजें के एक हेल्पर के रूप में हम करवा सकते हैं। अगर कोई भी बिजनेस है सर किसी भी जॉब में डायरेक्टर की जरूरत अपनी नहीं कॉस्ट पड़ती बचाने है, की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब स्टाफ को। तो सर यहाँ पे है कि जॉब के लिए सुटेबल है तो वहाँ रखना चाहिए। और सर क्या एम्प्लॉय को रखना या हटाना, क्या ये सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, देखिए बिल्कुल हो सकता है सर, एम्प्लॉय को रखने हटाने की बात, बिल्कुल आपकी बात इस पे डिपेंड करता है कि हमारी स्टडी क्या है। हम यहाँ पे एक बात कर रहे थे, जैसे अभी आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि भाई इसको हम नया लोगों को, स्किल्ड लोगों को कर दें, कई लोगों ने कहा कि हम इनको ही स्किल्ड में डेवलप कर सकते हैं, बट किसी ने ये बात नहीं की भाई मार्केट में क्या चल रहा है। मुरादाबाद कोई एक बहुत बड़ी जगह नहीं है, मुरादाबाद एक बहुत बड़ी जगह नहीं है। आपको नहीं सारे सर मैंने ये चीज बोला था सर मैंने ये चीज बोला था कि जब हम नए एम्प्लॉय का जब सिलेक्शन करेंगे तो नए एम्प्लॉय जब मार्केट में क्या चल रहा है उस चीज को लेके आएंगे कंपनी में, उस चीज को बताएंगे कि मार्केट में सर ये चीजें चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो हमें इस चीज पर वर्क करना है सर। एक चीज का कंफ्यूजन है, आप ये बताइए कि अगर जैसे हम किसी चीज को बदलना चाहें, अगर बदल के उस चीज को अगर हम नई चीज लेना चाहें, तो इसमें ज्यादा रिस्क है कि पुरानी चीज को जो भी एम्प्लॉय या कुछ भी उनको ठीक करके या उन पर
और अच्छे से काम करके उस चीज को रखें, बाहर निकालने या फिर और नहीं ज्यादा एम्प्लॉय को लेने का क्या नहीं मतलब सर, तो है? सर तो इस सर रिस्क तो, सर तो मैनेजमेंट इसका जो मतलब बिजनेस तो ओनर कुछ का है काम नहीं होता सर। सर जो नए वाले हैं उनको भी तो सर चांस मिलना चाहिए, जो नए भी हैं, जो जैसे कि सर कोई भी यदि हम बढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम नए में, वाले जो को पुराने जो असिस्टेंट के कंपनी, रूप में रख सकते हैं ना सर। सर ऐसे तो अरविंद का सर कंफ्यूजन और नए बढ़ वालों जाएगा। सर नए वालों पीरियड तो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। सर, पर नए वर्कर्स को हायर नहीं करने में आप कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो जाएगी। बट जो सर और मैं पुराने बिजनेस कर रहा हूँ, वर्कर्स हैं कॉस्ट ये वो भी भी तो तो कम बात करने सीख के सकते हैं समझनी ना है। ऑर्गेनाइजेशन इजली। तो आपने वो अरविंद को प्रेशर सबसे की पहले बात ये तो है, ध्यान ट्रेनिंग देकर। हेलो। सर किसी भी बिजनेस ग्रोथ के टारगेट देखिए अभी टाइम टाइम अभी पे नोटिस करना चाहिए क्या चल सर अभी प्रेजेंट जो भी प्रॉब्लम है अरविंद को उसमें फोकस करना चाहिए, ना कि किसी एम्प्लॉय को, और ना ही किसी मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। सबसे पहले उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है क्या नहीं उसमें समझना चाहिए, बाद में ये बात तो अपने सही है सर, एम्प्लॉय क्योंकि वर्कर पे अगर जाना अगर चाहिए, उसका नहीं तो बात बिजनेस कंफ्यूजन लॉस हो में जाएगी। होता तब समझ में आता कि उसको एम्प्लॉय को चेंज करना है या तुरंत हटाने की नीड है, क्योंकि उसका बिजनेस लॉस में तो है नहीं, तो सर वो उनको स्किल भी बना सकता है कुछ दिन उनके साथ वर्क करके। यस सर। ये तो तुरंत हटाने की बात कही नहीं ना, अच्छा स्किल वर्कर एक 20 एक बात पे तो सब 20 लोग एग्री कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भाई अरविंद को थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना चाहिए अपना यस यस डिसीजन सर, लेने के लिए। ये ऑब्जर्वेशन बात पे जरूरी तो है सब सर। एग्री करेंगे। यस सर। यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। यस सर सब अरविंद को सर टाइम मिलेगा तो सर सोच सकेगा सर कुछ तो थोड़े नई अपने चीज के लिए वर्कर वो को सोच चीजें सपोर्ट हमारी सकेगा। करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, और जो जो प्रोसेस है जैसे कि वो अपने वर्कर को स्किल कर सके तो करना सर चाहिए। टाइम टू टाइम नए ग्रोथ लाने के लिए सर डायरेक्ट करना ही पड़ेगा अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को। जी। अब पहले तो ये है कि भाई उनको स्टडी पूरी करनी चाहिए और उसके दो, और दूसरी जो बात अभी कई लोगों ने कहा कि भाई अपने पहले फादर को टाइम देके और एम्प्लॉइज को टाइम देके, वो 360 डिग्री एक ऑब्जर्वेशन है ना अपने मैनेजमेंट में, 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन। ये यस सर, 360 डिग्री 360 ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि भाई मैं अपने पापा से ही बात करूं, मैं अपने वर्कर से ही बात करूं, मैं अपनी इंडस्ट्री से ही बात करूं। कोई इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा कि भाई इंडस्ट्री से भी तो मुझे पता करना पड़ेगा कि क्या इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो मैं ये मैनेजमेंट के चेंज करना चाह रहा हूँ, क्या मेरी इंडस्ट्री को एक्सेप्टेबल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। सर जो सर वहाँ पे जो एम्प्लॉय सर सर जो वो जो काम एवरी कर रहे लेवल हैं पे ना, तो अरविंद को उससे फीडबैक लेनी चाहिए सर कि कैसा, मतलब कंपनी का कैसा चल रहा है। सर जैसे होता है ना कि मीटिंग बैठती एम्प्लॉय मीटिंग, तो एम्प्लॉय मीटिंग में अरविंद को ये पता लग जाएगा कंपनी में क्या चीज हाँ, कंपनी चल रही नहीं, है। सर अब वो जब वो एवरी लेवल फील्ड पे में इंटरेक्शन करेगा कंपनी टॉप तो लेवल पे कंपनी तो है ही है, फील्ड को भी एक आपको Yes, ऑब्जर्व sir. करना पड़ेगा। मुझे अपने पोटेंशियल के साथ साथ आपका Yes. पोटेंशियल भी देखना पड़ेगा कि भाई मेरा कंपटीटर जो है उसके अंदर कितनी पावर है, और मार्केट में क्या डिमांड है, मार्केट में क्या सप्लाई है। ये सब चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी कि मार्केट में डिमांड, सप्लाई, और जो मेरे कंपटीटर हैं, और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग। कि भाई हम एकदम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे क्या, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है। भाई एक जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर को पता है कि एक एरिया है, वो तुरंत इंडस्ट्री नहीं एस्टेब्लिश कर देगा। शॉपकीपर उसमें ये ऑब्जर्व करेगा कि भाई हाँ इस फील्ड में सप्लायर नहीं है, इस फील्ड में कम सप्लायर हैं, और जब कम सप्लायर हैं और मार्केट अवेलेबल है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, वी हैव टू सी दैट इशू आल्सो। तो हमें वो सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी। तो दूसरी चीज ये है कि भाई उसको अपने कंपटीटर और अपनी मार्केट को भी एनालाइज करना चाहिए कि वो मार्केट और कंपटीटर्स में क्या इश्यूज हैं, वो उसको देखना चाहिए। और अगर चेंज नहीं करेगा, ये भी सब एग्री कर रहे हैं, अगर वो चेंज नहीं करेगा तो सर्वाइवल भी नहीं है। भाई चेंज तो हमें करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर वो चेंज नहीं करता है तो फिर उसकी क्वालिफिकेशन का फायदा क्या है। और द क्वालिफिकेशन शुड नॉट ओनली एसोसिएटेड विद द increase of the business, it should be also associated with the value based development where he has to take in consideration the benefit of the employees as well as the benefit of the industry or the benefit of the organization। भाई उसको सब सारे स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना भी पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है ना कि भाई उसको ये नहीं है यहाँ के भाई अपना फायदा देख लिया, एम्प्लॉय को भी देखना पड़ेगा, तो हमने हटाने की बात नहीं है।
तो आपको वो जो एम्प्लॉय है, अर्पित ने भी बोला, इन्होंने भी बोला, प्रीति ने भी बोला, कृष्ण ने भी बोला, तो आप लोगों ने भी जो बोला, क्योंकि ये भी तो एक बड़ी वो है ना कि भी हम उसमें चेंज करने जा रहे हैं कि पहली बात टाइम देना चाहिए, फिर इसके साथ साथ हमें उस पर्सपेक्टिव में हम क्या कर सकते हैं, हमें ये सब चीज भी देखनी पड़ेगी। और चेंज इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, देयर इज ऑलवेज द जनरेशन गैप, a new worker will be coming, as Krishan told that a new worker is coming, a new worker will be coming with a new technique or new technology, but before that we have to see whether this technology is available in the field over there। अब वो नया वर्कर है, उस यहाँ पे हम डिग्री की बात नहीं कर रहे, यहाँ हमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर चाहिए। हम यहाँ डिग्री की बात नहीं कर रहे कि भैया जो हमारा वर्कर है वो स्किल्ड होना चाहिए, सेमी स्किल्ड होना चाहिए या नॉन स्किल्ड होना चाहिए। अब हम उसको, जैसे आप लोगों ने मॉडल दिया, हम उसको स्किल्ड और नॉन स्किल्ड और सेमी स्किल्ड इनका कॉम्बिनेशन एक क्रिएट कर दें ताकि सबको बेनिफिट हो इन दैट रेस्पेक्टिव। तो या और हमें उनकी टेक्निक्स को, हमें उनके जो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करना पड़ेगा, न्यू स्किल्स के बारे में अवेयर करना पड़ेगा। कल ही हम बात कर रहे थे, जो वो जापान से जब उनका केस आया तो उन्होंने कहा कि भाई जो अपने लोग हैं जो मशीन पे काम कर रहे हैं, अब वो मशीन पे काम नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक मशीन पे काम करेंगे, तो उसका तो वर्क कल्चर चेंज हो गया ना, उसके साथी चेंज हो गए, वर्क कल्चर चेंज हो गया, वर्क चेंज हो गया, तो वो सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हम सब मिक्स करके कुछ चीजें किसी एक ने कही, किसी दूसरे ने कही, बट अगेन hope the discussion was fruitful. Rest we will discuss in the next class, and test will be on Saturday. And yes, thank you everyone for your participation. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Not participated. आपका पार्टिसिपेशन से ही आगे चल सकती है। बिल्कुल सर, thank you. आपने डेट क्या पाई सर? हाँ जी।